صبح بدا من طلعته. جو پہلے مارتے تھے غریبوں کو وہی فاروق امیر المومنین بنے، چہرے پہ نقاب پہنا، گلی سے گزر رہے، ایک بوڑھی اماں پریشان بیٹھی، عمر روک گئے، غلام سے کہنے لگے بوڑھی پریشان لگتی، حضور پوچھ لیتے، فرمایا اماں اندر آ جائیں، اماں کہنے لگی جاؤ دوڑو اپنا کام کرو، کہا تیری مہربانی آنے دے، جب ضد کی تو کہنے لگی آ جاؤ، حضرت عمر اندر گئے، نقاب ہے چہرے پہ، اماں کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگی عمر سے بڑی شکایت، کیا ہوا؟ کہنے لگی بوڑھی بھی ہوں، بیوہ بھی ہوں، بے اولاد بھی ہوں، 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا، 3 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی، عمر امیر المومنین ہے، اس نے میرا حال ہی نہیں پوچھا۔ حضرت عمر کہنے لگے اماں عمر کو کیا پتا تو اس حال میں ہے؟ تو مدینے کی وہ بوڑھی عورت بھی جانتی تھی کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے، جمہوریت کیا ہوتی ہے۔ اماں عمر کو کیا پتا کہ تو اس حال میں ہے؟ تو وہ اماں بولی، کہنے لگی کیا کہا تم نے؟ عمر کو پتا نہیں؟ تو عمر کو جا کے میرا پیغام دے دو کہ حکومت چھوڑ دے، اس کے حوالے کرے جو غریبوں کا پتہ رکھ سکتا ہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو بہانہ کر کے سائیڈ پہ ہو گیا، بول، تو پتہ رکھ نہیں سکتا تو کیوں حکومت کرتا ہے؟ آپ کے غلام کہتے ہیں عمر دوڑ لگا کے باہر نکلی، کھانا پکا پکایا گھر سے لائے، 25 دینار بھی لائے، 2 بوریاں ناج کی کندھوں پہ رکھ لی، غلام کہنے لگا حضور مجھے دے دے، فرمایا وعدہ کر قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ حضور میں نہیں اٹھا سکتا۔ عمر لائے، اس بوڑھی اماں کو 25 دینار دیے، 2-3 مہینے کا راشن دیا، کھانا کھلایا۔ یہاں تو جس کا 200-400 ووٹ ہو اسے ہے کوئی سردار چودھری پوچھ لے، غریبوں کو کون پوچھتا ہے؟ لیکن جب میلاد کا انقلاب آتا ہے پھر غریبوں کی عزت بڑھتی ہے۔ حضرت عمر اماں کے پیروں میں بیٹھ گئے، کہنے لگے اماں چل عمر کو میری خاطر معاف کر دے۔ اماں نے ایک لفظ کہا تو آپ کے غلام کہتے ہیں عمر کو اتنا روتے کبھی نہیں دیکھا جتنا عمر آج روئے۔ اماں کہنے لگی میں کوئی نہیں معاف کروں، میں تو بوڑھی ہوں، کسی وقت بھی بلاوا آئے گا، جب میں مروں گی نا نبی پاک میری قبر میں آئیں گے تو میں عمر کی شکایت لگاؤں گی، میں کہوں گی محبوبہ میں غریبنی، مجبور، پریشان، آپ نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی، اس نے میرا حال نہیں پوچھا۔ آپ کے غلام کہتے ہیں عمر اس طرح روتے جیسے بچہ بلک کے روتا ہے۔ کہنے لگے اماں اس طرح نہ کرنا، عمر بڑا کمزور ہے، بڑا کمزور، وہ یہ شکایت نہ لگانا، عمر بڑا ماڑا ہے، حضور کا سامنا نہیں کر سکے۔ اماں کہنے لگی نہیں میرا دکھ ہی بڑا ہے، میں عمر کی شکایت لگاؤں گی۔ حضرت فاروق اعظم منت کرنے لگے تو بوڑھی کہنے لگی چل تیری خاطر عمر کو معاف کیا۔ حضرت عمر کہنے لگے مجھے لکھ کے دے، اماں کہنے لگی تم لکھ دو میں سائن کر دیتی ہوں۔ حضرت عمر نے لکھا فلاں بنت فلاں عمر سے ناراض تھی، پھر عمر نے راضی کر لی۔ وہ اماں دستخط کرنے ہی لگی تھی کہ مولا علی شیر خدا آ گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے رضی اللہ تعالی عنہما، اندر آتے ہی کہنے لگے عمر یہاں کھڑے ہو، میں سارے مدینے میں ڈھونڈ آیا ہوں، وہ ملک شام کے کچھ سفیر ملنے آئے۔ اماں فٹافٹ اٹھ گئی، ہائے یہ عمر تھا، عمر کے سامنے کہتی رہی۔ فاروق اعظم کہنے لگے نا اماں تو وعدے پہ قائم رہے، تو نے جو کیا ٹھیک کیا، سائن کر۔ اماں نے دستخط کیے تو حضرت عمر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو خط دے کے کہنے لگے علی گواہ کے سائن آپ بھی کر دو، عبداللہ بطور گواہ تم بھی دستخط کر۔ جب سائن کر گئے کر دیے تو حضرت عمر نے رکا لپیٹا اور حضرت علی کو دیکھ کے کہنے لگے علی مجھے امید ہے میں تم سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں، جب میں مر جاؤں تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا۔ میرے نبی نے اگر پوچھا عمر میری امت کا کیا کر کے آئے ہو تو میں رکا نکال کے عرض کروں گا مولا ایک بوڑھی اماں ناراض تھی میں اسے بھی راضی کر کے آیا ہوں۔ اور بھائی میلاد انقلاب کا خدا را امیروں کا انتظار نہ کرو، غریب ایک دوسرے کے آنسو پہنچو۔ حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کلمہ پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ ہمارا سارا قبیلہ تجارت کے لیے نکلا تھا، اور اس وقت منظر یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے، 6 مہینے سفر کرنا ہوتا تھا، اونٹ گھوڑے ہم بیچا کرتے تھے، عورتیں بھی ساتھ رہتی، کھاتے بھی پکاتے بھی۔ کہتے ایک سفر سے ہم واپس آ رہے تھے تو مدینے کے باہر صحرا میں ہم نے پڑاؤ کیا، اکیلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے نبی پاک تنہا اکیلے، حضور نہ سیر کرتے کرتے ہمارے
काफले के पास से गुजरे, खैमे लगे थे, पड़ाव किया, महबूब तशरीफ ले आए। कहते हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कोई कबीले में से, काफले में से हुजूर को जानता नहीं था। एक सुर्ख रंग का ऊंट था हमारे सरदार का, जो बिकने से रह गया था, बड़ा खूबसूरत। कहते नबी पाक को पसंद आ गया। हुजूर पूछने लगे तुम कौन हो? कहा जी मुसाफिर है। कहाँ से आए हो? फलां जगह से आए हैं। किस लिए आए हो? हम तिजारत की गर्ज से निकले। ऊंट बेचोगे? बेचना है। कितने का? सौदा तय हुआ। उसने कहा इतने लेने, हुजूर ने कहा इतने देने हैं। बात तय हो गई। कहते हैं लगाम हुजूर ने पकड़ी और फरमाने लगे वो सामने मेरा शहर है जिसका नाम मदीना, वो मेरा शहर है। मैं अभी मदीने जाता हूं, अपने गुलाम को बेचता हूं और तुम्हें आके ना कीमत दे जाता है। महबूब घोड़े की लगाम था, ऊंट की लगाम था, मैं नकेल था, मैं ऊंट था सुर्ख रंग का। हुजूर लेके जब निकले ना, थोड़ा सा चंद कदम आगे गए तो उनमें से एक शख्स बोला, कहने लगा सरदार आप सियाने लोग हैं, समझदार है। उस शख्स का नाम पूछा आपने, कबीला पूछा है, एड्रेस का पता है, पता है कहाँ रहता है, इतना कीमती ऊंट दे दिया। तो सरदार भी कहने लगा, सारे कहने लगे यार उनकी बातों में इतनी लज्जत थी, उनके गुफ्तार और रफ्तार इतनी बावकार थी, मजेदार थी कि होश ही कोई नहीं रहा। भाई हम पुराने ताजर हैं, कभी इस तरह का सौदा किया ही नहीं जिस तरह का आज हो गया। ओहो वाकई कुछ नहीं याद रहा, कोई समझ नहीं आई। वो अभी नजर आ रहे, एक आदमी दौड़ के जाओ, दौड़ के और जा करके ना उनसे कहो, बड़ी जायज बात है, वो नाराज भी नहीं होंगे। उनसे एक शख्स कहो कि भाई ऊंट दे जाओ, पैसे ले आना और अपना माल ले जाना, दौड़ के जाओ। एक शख्स दौड़ने लगा तो सरदार की बीवी खैमे के अंदर थी, पर्दे के पीछे से बोली, कहने लगी खबरदार कोई पीछे ना जाए, अगर पैसे मिल गए तो ठीक है, ना मिले तो मैं दे दूं, कोई पीछे ना, कोई ना जाए पीछे। सरदार कहने लगा तू जानती है? कहने लगी नहीं। का गारंटी क्यों दे रही है? तो कहने लगी तुमने उनका चेहरा नहीं देखा, तुम तो सौदे कर रहे थे, मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी। पीर मेहर अली शाह साहब को किसी ने कहा था नबी पाक का हुलिया बयान करे, बताएं हुजूर के कान मुबारक कैसे थे, आंखें कैसी थी, नाक मुबारक कैसी थी, बीनी मुबारक कैसी थी। तो पीर मेहर अली शाह साहब कहने लगे कोई मिसल नहीं ढोलन दी। कहने लगे मुझसे नहीं बयान होता हुजूर का हुलिया, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, तू चुप कर मेहरे अली, इथे जा नहीं बोलन दी, बस कर, तू बयान कर सकता है, इतनी ताकत। आला हज़रत ने कहा लम याती नज़ीर कपी नाज़रिन मिसले तो नशुद, पैदा जाना। कहा हुजूर मिसाल तो तब आपकी बनेगी ना, कोई आपकी तरह का पैदा तो होगा, तभी मिसाल बनेगी, तो जब हुआ ही नहीं तो मिसाल कैसे बनेगी? कहने लगी कोई ना जाए, ना पैसे आए तो मैं दे दूंगी। मैं तो पर्दे के पीछे से देख रही थी, उनके चेहरे का वकार देखा, उनकी आंखों की रोशनी देखी, उनके लफ्जों का हुस्न देखा। तुम 50 बातें करते थे, वो एक जवाब देते और गिने चुने लफ्ज बोलते थे। उनकी सादगी का वकार देखा। जाने दो, ना पैसे आए तो मैं दूंगी। कहते हुजूर गए, थोड़ी देर के बाद एक काले रंग का हबशी गुलाम आया, पैसे भी पकड़े और अपनी चादर में ना खजूरें बांध के तो पीछे डाली हुई। और देहाती लोग पीछे नहीं डाल लेते, खजूरें डाल के पीछे। कहते वो आए और उनके नहाने का अंदाज भी बड़ा निराला था। कहते वो झूमते झूमते अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह उस समद करते पहुंच गए और आगे कहने लगे तुमसे मेरे नबी ने ऊंट खरीदा? तुमसे? कहा हमसे खरीदा है। कहने लगे ये तुम्हारे पैसे? और फिर चादर खोल के सहरा पे बिछा दी। कहने लगे ये तुम्हारे पैसे और खजूरें खाओ, मेरे नबी ने तोहफा भेजा है, खाओ हुजूर ने तोहफा भेजा है। तो वो सरदार की बीवी ओठ हटा के कहने लगी और काले रंग के हबशी गुलाम, इन्हें खजूरें खिला और मुझे उस इज्जत वाली माँ का नाम बता जिसके घर में ऐसा लाल पैदा हुआ। इन्हें खजूरें खिला और मुझे उस अजमत वाले बाप का नाम बता जिसके घर में ऐसा फूल खिला है। वो कबीला तो बता तो सही, वो कौन थे? 2 घड़ियां रुके हैं पर खुशबू फैल गई है, रंग ही बदल गया तार, कोई मिसल ना ढोलन दी। तो चुप कर मेहरे अली, इथे जा नहीं बोलन दी। एक रवायत मेरी नजर से गुजरी और क्या ही अंदाज है इमाम जुर्कानी ने लिखी। एक सहाबी है हजरत अबू करसाफा रदी अल्लाह ताला, हजरत अबू करसाफा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं छोटा था, मेरी अम्मा और मेरी खाला मुझे साथ ले गई। मैंने कहा कहाँ जाना है? कहने लगे आओ नबी पाक का कलमा पढ़ने जाना है। पढ़िए दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु, सारे पढ़िए, फिर पढ़िए एक दफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि। हुजूर का जिक्र हो तो फौरन दुरूद पढ़ना चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ना मेरी खाला और मेरी अम्मा दोनों मुझे साथ ले गई कलमा पढ़ने।
कहते हैं जब हम हुजूर की बारगाह में पहुंचे, कलमा पढ़ा, वापस आए तो मेरी अम्मा और मेरी खाला आपस में बात करने लगी। मेरी खाला कहने लगी तूने देखा है उनका बोलना कितना मजेदार। मेरी खाला कहने लगी तूने तो वो देखा, लेकिन वो जो गुलाम आया था उसके साथ उनका रवैया कितना प्यारा था। तूने देखा जब वो खाना खा रहे थे तो पहला ख्याल उन्होंने हमारा किया। बार बार वो इनका जिक्र करती, कहते आपस में हुजूर की शानें बयान करती, मेरी अम्मा भी मेरी खाला भी। बिल आखिर बात लंबी हो गई तो मेरी अम्मा बोली, कहने लगी बस कर, हम कितनी अजमतें बयान करेंगे, मुझे तो 3 बातें समझ में आई। कितनी? 3 बातें मुझे समझ में आई हैं। कहा वो क्या? तो कहने लगी मा राई ना मिसला हाजुर राजुली अक्सा ना वजहन वला अल का सौबन वला अल बना कलामन। कहने लगी मुझे तो 3 बातें समझ में आई हैं कि ना इतना खूबसूरत चेहरे वाला को शख्स देखा है, और ना इतने साफ कपड़ों वाला को देखा है, और ना ही इतनी मीठी बोली बोलने वाला कोई देखा है। तीनों बातों की कमाल है। ज़ाहिरी हुस्न भी कमाल, कपड़ों की सफाई भी कमाल, और रसूल पाक का बोलना भी कमाल, लब और लहजे में मिठास भी, खूबसूरती वाली। ये असल हुस्न है कि ज़ाहिरन भी इंसान बड़ा मुनज़्ज़ा हो, बातिनन भी बड़ा साफ सुथरा हो। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम का तरीका मुबारक पता क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में नमाज पढ़ लेते तो हजरत जईफा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, बुखारी की हदीस है, फरमाते मैं मदीना शरीफ में आया तो हुजूर नमाज पढ़ लेते तो सहाबा नबी पाक के पास आते और हुजूर का दस्ते मुबारक पकड़ के पहले चूमते फिर चेहरों पे मलते, पहले चूमते फिर चेहरों पर। नबी पाक के सहाबा हुजूर के कदम भी चूमा करते, कदमों में झुका करते थे। ये तो भाई उस वक्त पता चलता है जब किसी से प्यार हो जाता है। जब किसी बंदे से, मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूं अक्सर, कि किसी का बच्चा पेशाब करे तो कह आती है, उल्टी आती है, लेकिन अपना बच्चा बालों में भी कर देता है, फिर कोई कह नहीं आती क्योंकि अपना है ना, प्यार हो गया ना। अब वो कैफियत जब किसी से मोहब्बत हो जाती है ना तो कुछ चीजें सिर्फ समझने की नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो महसूस करने वाली होती। उसने कहा था इश्क एक ढोंग है, मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर कोई तुझे उससे जुदा करे, तू उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे, तू उसी का नाम जपा करे, तू गली गली फिरा करे, फिर मैं कहूं कि इश्क एक ढोंग है और तू नहीं नहीं कहा कर, फिर मैं कहूं कि इश्क एक ढोंग है और तू। उसने कहा था इश्क एक ढोंग है तो मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे। भाई याद रखो, जब जब इंसान को मोहब्बत होती है तो फिर उसके अंदाज बदल जाते हैं, उसके तौर तरीके तब्दील हो जाते हैं। वो मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, मैं कहता हूं बच्चा बाहर से बर्गर खा के आ जाता है रात, अम्मा कहती बेटे रोटी खा लो, कहता दूसरा गोभी पकाई मैं नहीं खानी, हालांकि बर्गर है खा आया है, दूर से खा आया, तो अम्मा उसको कहती है फिर मैं सवैया ना बना दो थोड़ी सी अपने बेटे को, फटाफट चावल ना तुझे उबाल दूं, साथ में बारीक दाल बना दे, तो कहता नहीं नहीं मेरी मर्जी का पकाते ही नहीं, मैंने नहीं खा। ऐसे अब अब्बा जो है ना, अब्बा वो अम्मा को समझा रहा, कहता छठ पर भूख लगेगी तो आप ही खा लेगा, सुना ही टेंशन है अभी पे तेन सताना है। अम्मा क्या कहती है? कहती नहीं मुझे नींद नहीं आ, कि खाएगा तो सुकून आएगा। अब उसको आप लाखों दलीलें दें कि सियाना बयाना है, बच्चा नहीं है, 22 साल का है, 24 साल का, छोड़ तू क्या कर रही है। लेकिन अम्मा को कोई समझा सकता? क्यों नहीं समझा सकता? कि उसे अपने बेटे से प्यार बढ़ा। वो क्या करे, वो मजबूर है, उसके दिल की कैफियत इस तरह की है कि कोई दुनिया की ताकत उसे समझा सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता कोई उसे समझा सके। ये मुमकिन कैसे हो, कैसे सकता है? ये मोहब्बत है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम की सहाबी हजरत जईफा फरमाते मैं हुजूर की बारगाह में आया तो सहाबा क्या करते, नबी पाक का दस्ते मुबारक पकड़ते, पहले चूमते फिर चेहरे पे मलते। बुखारी है, फरमाते मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, फिर अचानक मेरा भी दिल किया जरा करके तो देखो, कुछ चीजें चखने पे पता लगता है कितनी मजेदार है। कहते मैं भी करीब गया, हुजूर के दस्ते मुबारक में मैंने हाथ डाला, फरमाते हाथ पकड़ा ही था कि नबी पाक का हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा। फरमाते फिर मैंने पकड़ के चेहरे पे मला तो कस्तूरी से ज्यादा खुशबू आ रही थी दस्ते मुबारक। फरमाते अब मेरा छोड़ने को दिल ही नहीं कर रहा, अब मेरी तबीयत नहीं मान रही थी। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की दलील है, हर पाकीज़गी, हर हुस्न, हर कैफ अल्लाह ने अपने रसूल को अता फरमाया। दुनिया की जितनी गलाजतें थी, जब कोई हुजूर के करीब जाता था तो सारी गलाजतें दूर हो जाती। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब तुम पर मेरी आयतें पढ़ेंगे और तुम्हें पाक फरमा दे, तुम्हारी सारी नापाकियां नबी पाक दूर कर दे, हर गलाजत तुमसे दूर हट जाए। एक सहाबी है हजरत
शैबा बिन उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं मेरे वालिद को और मेरे चचा को मुसलमानों ने उहद में कत्ल कर दिया था। मेरे दिल में बड़ा गुस्सा था, बड़ा जलाल था कि कभी मुझे मौका मिले तो मैं बदला लूंगा। कहते फतेह मक्का के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम हवाजन की जंग के लिए निकले। मुझे पता चला हुजूर जा रहे हैं तो मेरे अंदर शोले भड़क रहे थे इंतकाम के। रोज मैं मंसूबा बंदी करता, प्लानिंग करता कि किसी तरीके से मैं उन तक पहुंचूंगा और बदला लूंगा। कहते नबी करीम अलैहिस्सलाम ना हवाजन के लिए पहुंच चुके थे। फरमाते मैं भी जंग में जाके शरीक हो गया और मैंने तरीका इस तरह का इख्तियार किया कि किसी तरीके में हुजूर तक पहुंच जाऊं। समझ आ रही है मेरी बात की? नबी करीम अलैहिस्सलाम तक किसी तरीके पहुंच जाऊं। फरमाते लड़ते लड़ते, लड़ाई के दो तरीके होते थे। कभी तो ऐसे होता था कि एक एक दो आदमी मिलकर आपस में लड़ते थे, फिर गुमसान का रन पड़ता था, गंभीर हो जाती थी जंग, समझ नहीं आती थी तीर कहां से आया, नेला कहां से आया। फरमाते जब गुमसान का रन पड़ा ना, मुझे मौका मिल गया, मैं हुजूर के करीब पहुंच गया। हज़रत शैबा बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते जब मैं पहुंच गया तो मैंने ना देखा कि अब हुजूर के करीब करीब लोग नहीं है। फरमाते मैंने ना फौरन तलवार उठाई, तलवार उठा के मैं हुजूर को माज़ अल्लाह शहीद करने ही लगा था कि एक नूर चमका हुजूर के साथ। पढ़िए दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते एक नूर चमका, इतनी तेजी थी उस नूर में कि मेरी आंखें बंद हो गई, मेरे हाथ से तलवार गिर गई, आंखें चुंधिया गई मेरी। फरमाते तलवार मेरे हाथ से छूट गई। अब जब वो रोशनी मदम हुई ना तो मैंने देखा नबी पाक सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। आपने मैंने कर दी, आपने सुन ली, जरा देखो तो सही, जो तलवार लहराए उसे देख के भी कभी को मुस्कुराया है। जो जिसने तलवार ही लहरा दी, जो शहीद करने ही लगा था, पहुंच गया था। लेकिन ये इखलाक मेरे रसूल पाक का सल्लल्लाहु आला हज़रत खालिद बरेलवी का एक शेर मैंने पढ़ा। कई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बस ना वो आती तो सामने है, लेकिन वो इतना लुत्फ दे जाती है कि ठंडा हो जाता है मिजाज। रात को मैं शेर पढ़ रहा था आला हज़रत का खालिद बरेलवी रहमत, और मैंने शेर पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा सुनाना। एक दोस्त को मैंने फोन किया, मैंने कहा यार जरा शेर तो छोड़ ले, ये पहली दफा नजर से गुजरे, अभी सीधा सादा, लेकिन रूह तक उतर गया। आला हज़रत फरमाने लगे नबी पाक के बारे में, फरमाने लगे सीधी सीधी रवश पर करोड़ों दुरूद, सीधी सीधी रवश पर बिल्कुल सीधी है हुजूर की बातें, किसी पेचीदगी की जरूरत नहीं। कहने लगे सीधी सीधी रवश पर करोड़ों दुरूद, सादी सादी तबीयत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे देख के मुस्कुराए और फरमाया जब हुजूर मुस्कुराए ना तो मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम को देख के हैरान हुआ कि मैंने तलवार तानी थी और हुजूर ने मुस्कुराना शुरू किया। फरमाते अब हुजूर ने मुझे बुलाया, आवाज के साथ नहीं बुलाया, हुजूर ने इशारा किया यूं करके, फरमाया इधर आओ ना। फरमाते मुझे अब ये भी समझ नहीं आई कि किसने मुझे उठा के हुजूर के करीब कर दिया। फरमाते मैं नबी करीम के करीब गया तो हुजूर ने मेरे दिल पर 3 थपकियां दी। एक थप्पड़ होता है, एक थपकी होती। कहते हुजूर ने 3 थपकियां दी और दी भी मेरे दिल पर, 1 फिर 2 फिर 3। कहते पहली थपकी दी तो मेरे अंदर से कुफर निकल गई, दूसरी थपकी दी तो मेरे अंदर ईमान दाखिल हो गया, और तीसरी थपकी जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दी तो मुझे हर चीज से बढ़कर रसूलुल्लाह से प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई नबी करीम से। आप फरमाते अब हुजूर ने ना फौरन मेरे हाथ में तलवार थमाई, फरमाया पहले तू हमारे खिलाफ लड़ रहा था, तलवार पकड़, अब हमारी तरफ से लड़, तलवार पकड़ और लड़। आप फरमाते मैं इतना लड़ा कि जो हुजूर का दुश्मन सामने आता मैं गला काट देता, जो आता मैं उसके टुकड़े कर देता। फरमाते पहले मैं बाप का बदला लेने आया था और अब मेरा ये हाल है कि अगर मेरा बाप भी सामने आएगा तो मैं उसका भी गला काट दूंगा, लेकिन हुजूर के करीब किसी को जाने नहीं दूंगा। हज़रत शैबा बिन उस्मान कहते हैं जंग खत्म हो गई, हुजूर खैमे में गए, मैं भी गया। अब नबी पाक लोगों से बातें कर रहे हैं, हुजूर लोगों से बातें कर रहे हैं। मैं कोने में बैठा सोच रहा हूं कि मैं तो बदला लेने आया था, ये मेरे साथ हुआ क्या। हुजूर लोगों से बातें करते जा रहे हैं, मैं सोचता जा रहा हूं कि मैं तो इंतकाम लेने आया, ये क्या मामला हुआ। कहते महबूब ने अचानक मेरी तरफ नजर उठाई और फरमाने लगे शैबा एक इरादा तूने किया था जो गलत था, और एक इरादा मेरे रब ने किया है और तेरे ऊपर फजल फरमा दिया है। फरमाते हुजूर ने अब मुझसे फरमाया कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, मांग लो, कुछ मांगना है तो। मैंने इसकी या रसूलल्लाह मेरी बख्शिश की दुआ कर,
बड़ा मेरा खौफनाक माजी है, मैं इस्लाम का बड़ा दुश्मन था। कहते मैंने दुआ के लिए कहा और हुजूर फिर दूसरे लोगों से बातें करने लगा, कभी उससे कभी उससे कभी उससे। मैं सोचने लगा कि मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं आया। जब 2-3 बार मैंने सोचा तो मेरे करीम ने फिर तवज्जो मेरी जानिब की और फरमाया तूने बख्शिश की दुआ का कहा था, मैंने सुन लिया है, रब करीम ने तेरी बख्शिश फरमा दी है, अल्लाह ने तुझे बख्श दिया है, तेरी खताएं रब करीम ने माफ कर दी। नबी पाक के दस्ते मुबारक की बरकत, मैं आपको सैकड़ों लोग दिखाता हूं, सैकड़ों लोग, बड़े दावे से कह रहा हूं, 2, 4, 5 नहीं, सैकड़ों लोग। इन्होंने परदेश जाके मेहनत की, कमाइयां की, लेकिन अपने देश में मस्जिद बनाई तो लोगों को कहा कि अल्लामा साहब, कारी साहब, पीर साहब, मैं पैसे सारे दूंगा पर मेरा नाम ना लेना। मैंने कहा मैं सैकड़ों लोग दिखाता हूं, सैकड़ों लोग, मेहनत की, जद्दोजहद की, कोशिश की। ये स्टेज पे बैठते मेरी तरह के वो लोग जो पीर साहब, सूफी साहब, अल्लामा साहब होते, लेकिन मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूं जो महफिल का इश्तिहार अपने हाथों से लगाते, महफिल वाले दिन झाड़ू भी देते, लोगों को पैगाम भी देते, उनका इश्तिहार पे भी नाम कोई नहीं, नकीब ने भी नाम नहीं लिया, वो स्टेज में भी नहीं बैठे, लेकिन जब महफिल सज जाती है, जब दुनिया आ जाती है, जब रसूल पाक का जिक्र कुरूज पकड़ता है, तो वो दूर खड़े होकर कह रहे कितनी अच्छी हो गई है मेरी महफिल, कितनी अच्छी हो गई है मेरी महफिल। न किसी पीर ने नाम लिया, न किसी मौलवी ने लिया, न किसी नकीब ने लिया, न किसी नात खां ने लिया, पर ओ मेरे नबी की महफिल सजाने वालों, तुम्हारा नाम किसी ने नहीं लिया, तुम्हारी फोटो नहीं आई, तुम्हारा इश्तिहार पे नंबर नहीं लिखा गया, और जिस रसूल के लिए तुमने ये काम किया उस नबी को सारा ही पता है। वो हबीब जानते हैं, वो जानते हैं, उन्हें खबर है कि ये वो मेरा दीवाना है जो लोगों को दावतें देते, आओ मैंने रसूल पाक की महफिल सजानी, आओ आओ। आप यकीन करें लोग हाथ बांध के कहते हैं हजरत जी टाइम दे दें, दिल करता है जिक्र सरकार सजाया जाए। मेरे भाई याद रखो, फरोगे मोहब्बत की बात करो, पैगामे मोहब्बत की बात करो, मोहब्बत की बोली बोलो, मोहब्बत का तज़किरा करो, लोगों की अच्छाइयों का जिक्र करो, खूबियों का बयान करो, छोड़ो छोड़ो नफरतें, छोड़ो छोड़ो अदावतें, आओ वापस लौट आए। बुखारी मुस्लिम पढ़ो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपना एक भाई अपने घर से चला था अपने दूसरे भाई को मिलने। एक तो है सहाबी का प्यार, एक तो है अहले बैत का प्यार, एक अल्लाह के वली का प्यार। अपने घर से चला था वो अपने एक भाई से मिलने, बुखारी मुस्लिम है। हुजूर फरमाते हैं कि रास्ते में उसे फरिश्ता मिला इंसानी शक्ल में। लोग तो रोज सफर करते हैं पर फरिश्ते नहीं आते, अल्लाह ने फरिश्ता भेजा इंसानी शक्ल में। किधर जा रहे हो मियाँ? कहने लगा अपने भाई से मिलने जा रहा हूं। कहा उसका तेरे ऊपर कोई एहसान है? उसने कहा नहीं। तो क्यों मिलने जा रहे हो? सुनना हो यारो, ये मेरी बात नहीं, ये मदीने वाले रसूल की जुबान अतहर से निकला है। फरमाया कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं जा रहा हूं भाई से मिलने। कोई एहसान है? कोई नहीं। कोई लेन देन का मामला? कोई नहीं। क्यों मिलने जा रहे हो? क्यों? कहने लगा इसलिए मिलने जा रहा हूं कि वो भी अल्लाह का बंदा है। मैं रब का बंदा समझ के, अल्लाह का बंदा समझ, मैं कहता हूं ओ पीराने उज़ाम, तुमने अगर धोखे की पगड़ियां बांधी और तुमने अगर फराड के जुब्बे पहने, तुमने अगर झूठ के पलंदे बांधे तो वो तुम्हारा मामला है, लेकिन जो तुम्हें रब का बंदा समझ के मिलने आएगा वो अजर हासिल कर लेगा, वो अल्लाह की बारगाह से नवाज दिया जाएगा। वो तो अल्लाह का बंदा समझ के आया ना, उसे तो नहीं पता जुब्बे के नीचे क्या है, उसे नहीं पता बड़ी पगड़ी के नीचे क्या है। मदीने वाले महबूब फरमाने लगे वो फरिश्ता आया और आकर के उससे कहने लगा अल्लाह की रिजा के लिए मिलने जा रहे हो? उसने कहा, कहने लगा सुनो फिर मैं इंसान नहीं, मैं फरिश्ता हूं, मुझे रब ने भेजा है। और रब फरमाते हैं जिस तरह तुम दोनों मेरी रिजा के लिए आपस में मोहब्बत करते हो ना, अल्लाह तुम दोनों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह तुम दोनों से मोहब्बत, थोड़ा थोड़ा फरोगे मोहब्बत, थोड़ा थोड़ा प्यार, बेटे से भी प्यार, बेटी से भी, भाई से भी प्यार। भाई भी प्यारे होते, बड़े प्यारे होते। ये भाई भाइयों दी बांह होंगे। कभी सगे भाई से भी प्यार, कभी किसी दोस्त से भी प्यार। अम्मा के पैरों तले भी जन्नत है, लेकिन बाप भी जवानी लुटा देता है। अब्बा से भी प्यार, कभी कभी उसको भी कहना कि मेरा दिल करता है मैं तेरे पैर दबाऊं, आज दिल करता है जैतून के तेल के साथ तेरे सर की मालिश कर। उनसे भी थोड़ा फरोगे मोहब्बत, थोड़ा प्यार। कभी वैसे ही चल निकलना, वैसे ही
اور کہنا کہ آج میں نا مدینے والے رسول کی امت کی نوکری کرنے نکلا ہوں. پیار بن. اور پھر جب پیار آئے نا نبی پاک تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم سنی بھی نا تھوڑے تھوڑے خشک ہوتے جا رہے. نعت پڑھنے والوں کا ذوق اگر خراب ہوا ہے تو ناراض نہ ہونا سننے والوں کا بھی ہو گئے. اب نعت ہم ذائقے سے سنتے ہی نہیں, ہمارا وہ رنگ ہی نہیں, وہ کیفیت ہی نہیں, نعت کے ساتھ ہماری وہ دلچسپی نہیں. ہم بھی چاہتے ہیں مجھے موٹا موٹا مسئلہ سناؤ, اور یارو میرے نبی کی شانیں سنا کرو, حضور کے معراج کی بات بھی سنا کرو, میلاد کی بات بھی سنا کرو. اور جب کوئی مدینے والے محبوب کا غلام حضور کے حسن کا ذکر کرے تو پھر بھی تازے ہو کے سنا کرو. جب معجزات بیان ہو تو شوق سے سنا کرو. اپنے بچوں کو بتایا کرو کہ ہمیں شان والا رسول اللہ نے دیا ہے. نبی پاک کے حسن کا, جمال کا, اخلاق کا, کردار کا, ہنسنے کا, بولنے کا, بات کرنے کا, بانٹنے کا, سخاوت کا, عطا کا, کرم کا, جمال کا, فیض کا, غلاموں سے پیار کرنے کا, کسی کو نوازنے کا. میرے رسول پاک علیہ السلام کا یہ تذکرہ یاد کرو, یہ لوگوں کو سنایا کرو, لوگوں کو بتایا کرو کہ جب وہ آمنہ کی گود میں تھے تو پھر بھی بڑے پیارے تھے, جب حلیمہ کے بیڑے میں تھے پھر بھی بڑے پیارے تھے, جب وہ معراج پہ گئے تو پھر بھی بڑی شان تھی, جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بستر نور پہ تھے پھر بھی بڑی شان والے تھے. لوگوں کو بتایا کرو کہ مدینے والے رسول جب سیدہ عائشہ سے باتیں کرتے تھے کرم تب بھی بڑا تھا, اور جب حضور غار ثور میں تھے شان تب بھی بڑی تھی, جب بدر میں آئے تو دلیر تب بھی بڑے تھے, جب احد میں آئے تو درگزر تب بھی بڑا تھا. اور لوگوں کو بتایا کرو کہ ہر نظر کانپ اٹھے کہ محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا, اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اور پھر سارے محشر کا نقشہ بدل جائے, اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, دیکھو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں, فاضل بریلوی فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, کہتا ہے میرا دل کرتا ہے سب نے ہاتھ باندھے ہوئے, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. حضرت ابو خزامہ یہ وہ واحد صحابی ہے جو گواہی ایک دے تو دو لکھی جاتی ہے. حضرت ابو خزامہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا گھوڑا خریدا ایک یہودی سے. ذرا محبت کی بات دیکھو, حضور تھے یا وہ یہودی تھا, سیاستہ میں حدیث. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے جائے, فرمایا پیسے لا کے دیتا ہوں. پیچھے سے یہودیوں نے کہا تو نے سستا بیچ دیا ہے. نبی پاک پیسے لے کر کے آئے تو حضور نے کہا پیسے رکھو گھوڑا دو. کہنے لگا کون سا گھوڑا, کیسا گھوڑا, میں نے تو بیچے نہیں. کی عقیدہ ہے جڑا مر جائے یا مکر جائے او دا کوئی حل ہے. اس نے کہا کون سا گھوڑا, حضور نے فرمایا گھوڑا تو نے بیچا, میں نے خریدا, پیسے رکھ. کہنے لگا کوئی گواہ ہے تو دے. ایک بندہ بھی کہہ دے. اب گواہی کون دے, وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں. رش لگ گیا, اپنے بیگانے سب جمع ہو گئے. حضرت ابو خزامہ پیچھے کھڑے تھے, دونوں ہاتھ اونچے کر دیے, کہنے لگے سونے میں گواہی دیتے, میں دیتا ہوں نا گواہی, میں دیتا ہوں گواہی. جب بات کر دی تو یہودی کی بات پوری ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پیسے دیے, گھوڑا لیا, سب لوگ چلے گئے. چونکہ اس نے کہا تھا ایک بندہ کہہ دے تو دے دیتا ہوں. حضور نے سیدنا بلال حبشی سے کہا گھوڑا لے دا گھر, اور شارحین نے لکھا ہے, شارحین نے, کہ نبی پاک نا لوگ چلے گئے تو حضور نے نا حضرت خزامہ کے یوں گلے میں ہاتھ ڈالا, اور حضور ساتھ ساتھ جل رہے, ساتھ ساتھ, اور مسکرا کے فرمانے لگے یار تو نے تو دیکھا ہی نہیں تھا, اور گواہی کیسے دے دی, تو تے تھا ہی نہیں. گواہی نہ علماء میں پھسا سانو, تو یار دی گل سنا سانو, اور تے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق قرآن دا ڈیرا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو خزامہ تو تھا ہی نہیں, تو گواہی کیسے دے دی. چلتے چلتے کہا, جناب ابو خزامہ ٹھہر گئے, حضور پہ رک گئے, غور سے سرکار کا چہرہ دیکھا, عرض کرنے لگے سونیا کیا کہا, میں وہاں تھا نہیں, میں نے دیکھا نہیں تو گواہی دے دی. کیا جملہ ہے, کیا شان ہے, کیا ایمان ہے, کیا قوت ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا, میں نے کو دیکھا, تو نے کہا وہ ہے تو میں نے کہا ہے, تو نے کہا مالک ہے تو میں نے کہا وہ مالک ہے, تو نے کہا خالق ہے تو میں نے کہا وہ خالق ہے, تو نے کہا اس نے تجھے پیدا کیا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہو گیا, تو نے کہا سجدہ کر تو میں نے کیا, تو نے کہا اس کا ذکر کر تو میں نے کیا, تو نے کہا یہ اس کی کتاب ہے پڑھ تو میں نے پڑھی. تو جب تیرے کہنے پہ میں اتنی بڑی شے مان گیا ہوں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں.
इतनी बड़ी शय जो मान गया हूं कि घोड़ा पीछे रह जाए, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलती कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। आप जरा मानने का रंग देखें, आप जरा गुलामों के मानने का, आप जरा अंदाज तो देखें ना गुलामों के मान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते सुनिया मैंने को रब देखा है, आपने कहा है तो मैंने कहा इतनी बड़ी शय मान। अब हुजूर ने क्या कहा, ऐसे नहीं कहते, ये नहीं फरमाया, इस तरह नहीं करते, ये नहीं फरमाया। नबी पाक ने ना बाजू पकड़ा। हजरत अबू खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ना, वो कभी जीत जाता था ना हमारा खिलाड़ी, तो उसका बाजू पकड़ के ऊंचा करते थे। तो नबी पाक ने हजरत अबू खुज़ैमा का बाजू पकड़ के ऊंचा किया। मैं सुनो मेरे यारो, जहां गवाही की जरूरत पड़े 2 बंदे चाहिए, पर जहां मेरा अबू खुज़ैमा आ जाए ना, एक की गवाही 2 के बराबर, एक की गवाही 2 के बराबर। मेरे भाई महबूब की मोहब्बत कोई मामूली बात है? रसूल पाक का प्यार आप इसको हल्की बात जानते हैं? सुनो, यहाँ लोग कह देते हैं मैंने इतने साल लगाए गुलामी में। हजरत सुहैब इब्ने सन्नान, हजरत सुहैब इब्ने सन्नान रूमी मक्के से निकले मदीने जाने के लिए। अबू जाल ने रोक लिया, कहने लगे नहीं जाने दे। आप फरमाने लगे एक सौदा करते हो मेरे साथ? मैंने कहा वो क्या? फरमाया तुम्हें पता है ना मैं बड़ा मालदार आदमी हूं। मैंने कहा जी हाँ। फरमाने लगे मदीने मैंने जाना है, मैंने ठान ले ली। वो सुना था कि आस्ताना यार दूर है, पर हमने ये ठान ली थी कि जाना जरूर है। और मौकूफ तूर पर ही नहीं जलवाए दीद कुछ, होश उड़ गए जहां पर वहीं कोहे तूर है। बस होश उड़ गए जहां पर वहीं कोहे तूर है। तो आप फरमाने लगे मैंने मदीने तो जाना है, अगर रोकोगे तो मैं फिर तलवार निकालूंगा, टूट गई तो तीर निकालूंगा, खत्म हो गए तो नेजा चलाऊंगा, मदीने में जाकर रहूंगा। जिन वेख के ठर दिया अखियां ने, जिन वेख के ठर दा सीना है, रब्बा तेरी साल उदाई च एक ही तो शहर मदीना है, और मैं जाना मैंने जरूर है, ये पक्का है, सौदा कर लो। अबू जाल कहने लगा जी क्या सौदा? आप फरमाने लगे तो पता है ना मेरे पास बड़ा माल है, पता है ना मेरे पास बड़ा कुछ है। उसने कहा हाँ। फरमाने लगे सारा ले लो। अबू जाल कहने लगा यानी सारा? आपने फरमाया सारा। जेबें खाली कर दी, जेबें खाली कर दी, हर चीज उतार के दे दी। घोड़े पे जो कजावा था ना वो भी उतार के दे दिया। हजरत सुहैब इब्ने सन्नान कहते हैं मैं सारा कुछ दे के ना, सारा कुछ दे के, सारा कुछ दे मदीने पहुंचा। रसूल करीम की जियारत हुई। जो लफ्ज नबी पाक ने कहे वो बड़े अनोखे हैं। फरमाया सुहैब तूने जो तिजारत की है ना, तूने माल दे के रब रसूल को राजी कर लिया है। तिजारत लफ्ज बड़े काबिल गौर है। हुजूर फरमाने लगे तूने जो तिजारत की है ना, माल दे के अल्लाह रसूल को राजी कर लिया है। पर मैं तिजारत तूने की है पर कोई महंगा सौदा नहीं किया, और तूने तो सस्ते में खरीद ली यार, शायद तूने कोई महंगा सौदा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में मौजूद हैं, साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। कुफार जो गिरफ्तार करने वाले थे, पीछे लगे हुए थे, वो गारे सौर के दरवाजे तक आ गए। जिस तरह डॉक्टर बोल देता है, वो कह देता है कि अब जनाब मुश्किल है, अगले हफ्ते आप चले जाएंगे। तो वो जो कमजोर लोग हैं उन्होंने अगले हफ्ते क्या जाना होता है, वो जब डॉक्टर बताता है उसी वक्त ही फौत हो जाते हैं। वो कहते हैं अगला हफ्ता तो लेट है, उसी वक्त ही समेट लेते हैं सामान सफर। और कुछ लोग ऐसे थे, डॉक्टर ने कहा कि जनाब आपकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि आप बहुत जल्दी चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा जनाब आप जो कह रहे हैं अपने इल्म के मुताबिक कह रहे हैं, पर होना तो वो है जो मेरा रब करीम चाहेगा। ये वो जज्बात हैं जो हमें रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अता फरमाए। देखो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुजूर गारे सौर में मौजूद है। कुफार जो गिरफ्तार करने वाले हैं वो दरवाजे तक आ गए, बिल्कुल दरवाजे तक। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको देखकर थोड़ा सा घबराए, अपने लिए नहीं, ज़ाते मुस्तफ़ा के लिए घबराए, कहीं हुजूर को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए। थोड़ा घबराए, यार सुलह वो तो करीब आ गए, और अगर उन्होंने पैरों की जानिब झुक कर देखा वो तो हमें देख लेंगे। बिल्कुल सराहने पहुंच गए, ये आ गए, खड़े हो गए, और दरमियान में पर्दा क्या है? मकड़ी का जाला, और मकड़ी का जाला फूंक से भी उड़ जाता है। तो मकड़ी का जाला बीच में, हुजूर वो तो पहुंच गए, जरा झुक करके देखेंगे तो वो तो हमें पकड़ लेंगे। अब ये वक्त तरबियत है, और वो तरबियत जो महबूब ने अपने उस अजीम सहाबी की फरमाई, उस तरबियत को मेरे रब करीम ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। हुजूर फरमाते हैं
रब फरमाता है कि फरमाया महबूब ने, फरमाया ला तहज़न, अबू बकर घबराना। ये एक मौका होता है जब इंसान को घेर लेती हैं मुश्किलात चारों जानिब से, और जो भी आता है वो उसे मायूस ही करता है, लेकिन हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। कहा ला तहज़न, अबू बकर घबराना। क्यों? हमारी फौजें आके इन्हें पकड़ लेंगी, या अंदर हमारे पास कोई ऐसा असलहा मौजूद है कि हम इन पर छोड़ देंगे तो ये मर जाएंगे। ला तहज़न, अबू बकर घबराइए मत। क्यों ना घबराइए? इसलिए कि इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। जिनके साथ रब हो उन्हें घबराना नहीं चाहिए। उन्हें घबराना, ये जो मुसल्ले की कुव्वत होती है, ये दुआ की ताकत होती है, दुआ सलाहुल मोमिन, ये जो कुव्वत होती है इंसान के पास, ये जो उसके पास हथियार होता है कि आज रात मना लूंगा मेरा रब करम फरमा देगा, ये जो उसके पास कुव्वत होती है, ये उसे कमजोर नहीं पड़ने देती, उसे ताकतवर रखती। तो हुजूर ने अफकार के अंदर ये हुस्न पैदा किया, लोगों को बतलाया कि बजाय इसके कि तुम कोई चोर रास्ता तलाश करो, कोई सियासत करने की कोशिश करो, तुम कोई ऐसी राह इख्तियार करो जो तुम्हें महसूस हो कि दुरुस्त नहीं है, उस रास्ते न चलो, बल्कि तुम अपने रब को मनाने वाले रास्ते पे चलो। और तिरमिजी शरीफ में हदीस है, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि करीम महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपने दुखड़े दुनियादारों को ना बताना, सेठों, नवाबों, चौधरियों, चावलोसी करने की जरूरत कोई नहीं। अपने दुखड़े दुनियादारों को ना बताना, वरना अल्लाह तुम्हें कभी गनी नहीं फरमाएगा। फरमाया अपने दुख अपने रब करीम की बारगाह में अर्ज करना, जल्दी या देर से अल्लाह तुम्हें लोगों से बेनियाज कर देगा। तरबियत फरमाई। हम लोगों ने तेजी से अपने आप को कमजोर किया है। तवज्जो का मरकज दुनियादार, वो अकबर अलाहाबादी ने कहा था कि मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुंह से न निकली, जेबों से अर्जियां निकली। अब बिना लोग दरखास्तें जमा कराते हैं, दुआएं नहीं करते, तो भाई एक तो ये कि तौहीद बारी ताला के बारे में असल नजरियात, अफकार का हुस्न, पाकीज़गी, और आपका अपने रब की जानिब पूरा तवज्जो करना। हमारे यहाँ अब तो खैर करामतें फेसबुक पे आती हैं और लोग उसका सवाल भी बड़ा तगड़ा करके करते हैं, और जो बच्चे छोटे मोटे हमारी तरह तालिब इल्म होते हैं, कुछ किताबें पढ़ने वाले दीन के, वो कई दफा उलझ जाते हैं कि अब इसको टैली कैसे करें, साथ कैसे जोड़ें। ऐसी करामतें और करामत बयान करना भी लोगों ने जिम्मेदारी समझ लिया है, हालांकि जेड़े महरम राज हकीकत दे वो ते राज हकीकत खोल दे ही नहीं। ये जिन्ना वेख्या नहीं वो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया वो ते बोल दे ही नहीं, तो बात ही नहीं करते। तो करामत ना जोड़ जाड़ के ना कहीं सेट की जाती है। आपको बुखारी मुस्लिम में हदीस मिलेगी, कोई भी ऐसी ओहाम परस्ती, कोई भी ऐसा नजरिया, कोई भी ऐसी बात जो ज़हन को मुंतशिर करे, यानी अभी तक लोग कह देते हैं हमारे कि वो काली बिल्ली रास्ता काट गई, अगर तू किसी का एहसानमंद ही नहीं, अगर तू किसी का मशकूर ही नहीं, तो तू अल्लाह का क्या शुक्र अदा करे। हुजूर ने फरमाया जब कोई तुम्हारे साथ नेकी करे तो बेहतरीन बदला देने की कोशिश करो। वो बाबा बुल्ले शाह साहब ने ना कुत्ते की वफादारी का बयान फरमाया है, और बड़ी समझने वाली बात है। बाबा साहब कहते हैं कि कुत्ता जो है ना उसके हम मालिक है, तो हमारा भी तो कोई मालिक है ना। फरमाते हैं एक रोटी कुत्ते को डालते हैं, दूसरी मांगे तो कई दफा लोग जूता भी मार देते हैं, लेकिन खुद मालिक जो है कुत्ते का वो पंखे के नीचे, एसी के नीचे सोया है, और कुत्ता जाके सुबह किसी दरख्त के नीचे सोता है, और सारी रात मालिक सोया हुआ है, ये पहरेदारी कर रहा है, और किसी को भी इसके घर में आने नहीं दे रहा। कहते हैं तू कुत्ते का मालिक है तो तेरा भी तो कोई मालिक है ना। तो 4 साल बीमारी आ जाए तो लोग माज़अल्लाह अल्लाह के शिकवे करते हैं, और तू जूते मारता है तो तेरा जानवर तेरे घर से जाने को तैयार है। लोग बोरी में डाल के बंद करके छोड़ आते हैं, उसे पता है मालिक छोड़ गया है, लेकिन घर आने से पहले बिल्ली फिर आ जाती। एक बुरकी दा कदर पछानन पावे मालक हो मनसुते। एहसान किसी का तो याद रखा जाए। और जो लोग एहसानमंद थे, हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, मैंने देखा एक शख्स के पीछे पीछे हरन चल रहा था, वो जरा मेरे करीब आया तो मैंने उसे आके कहा कि ये हरन तो बंदा देख के भाग जाता है, तेरे पीछे कैसे चल रहा है?
تو सादी फरमाते हैं, वो शख्स कहने लगा इसका बच्चा मर रहा था, मैंने बचाया है, मैंने इसके बच्चे को पानी पिलाया है, घास खिलाई है, तो जब से ये दुम हिलाता हिलाता मेरे पीछे है। हजरत सादी फरमाते हैं उसके गले में रस्सी कोई नहीं थी, पर अगर उसके गले में कोई रस्सी थी तो एहसान की रस्सी थी, जिससे वो बंधा हुआ पीछे पीछे चला आ रहा था। कोई तो ऐसी रस्सी, यहां तो भाई इतना अजीब मामला हो गया है। वहां एक बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम हैं, तो एक दिन फरमा रहे थे यार हद हो गई है, इनको पढ़ाया था लिखाया था, वो मुकाबले में आके बैठ गए, हमने शागिर्द बनाए थे कि दुश्मन तैयार किए थे। वो अरबी का एक मुहावरा है ना, जिससे नेकी करो फिर उसके शर से भी बचो। बाज तो उसे हजरत अली का कौल भी कहते हैं, अपनी जिंदगी में ये मिजाज कभी ना बनाए, कभी ना बनाए, कभी कोई ऐसी तबीयत के अंदर बात ना लाएं। लोग मुख्तलिफ लोगों के बारे में नाम लेके ठट्ठा करते हैं माज़अल्लाह, और बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं। एक खान साहब से मेरी मुलाकात हुई कुछ अर्सा पहले, तो एक इंतहाई गरीब आदमी के घर में मैंने उन्हें ड्यूटी करते देखा। तो मैंने कहा आप यहाँ ड्यूटी करते? कहने लगे ये हमारे साहब बड़े अमीर होते थे, गरीब हो गए, सब छोड़ गए, हालात का तगय्युर बदला। तो मैंने कहा आप क्यों नहीं छोड़ के गए? कहने लगे क्या करूं, मजबूरी है, नमक खा रू, इनके घर का नमक खाया है, अब हालात के तगय्युर असला नाल जे नेकी करिए, वो नस्लां ताक नहीं भूल दे। तो वो मेरे दोस्त कहने लगे मैंने इसे 20 दफा कहा है कि तू चला जा। सब चले गए और मेरे पास गुंजाइश भी नहीं, लेकिन ये कहता है यही रोटी खाई है, जब राज के मिलती थी तब भी खाते थे, अब एक मिलती आधी आधी खाएंगे, रहना यहीं पे है। एहसान मंदी का मिजाज, और बिलखुसूस अपने करीबियों के बारे में, अपने अहले खानदान में से करीबियों के बारे में एहसान मंदी का मिजाज बनाए। अपनी तबीयत से नाशुक्री, अपनी तबीयत से रिश्तों को तोड़ना, अपने मिजाज से अपने करीबियों के एहसानात को भूल जाना, इससे बाहर आए। अपने असातिज़ा के लिए जज्बात पैदा करें। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते उस्ताद बदरजे बाप के हैं, और इस उस्ताद से कौन मुराद है? शेख मुर्शिद भी इसी में दाखिल है, जिससे हम तरबियत लेते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह हमें कोई खैर नसीब करता है, जिसकी बात से कुछ सीखते हैं, वो भी इसमें दाखिल है। फरमाते इनका हक है, और जो हक वाले थे उन्होंने हक इस तरह समझा कि हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते मेरा उस्ताद अगर चाहे तो मदीने के चौक में खड़ा करके मुझे बेच दे, मैं बिक जाऊंगा, लेकिन उसके हक से मैं आप पीछे नहीं हटूंगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो तुमसे नेकी करे उसे अच्छा बदला देने की कोशिश करो। और हुजूर फरमाने लगे अगर बदला देने की ताकत ना हो तो फिर उसके लिए दुआ करो, और इतनी करो इतनी करो इतनी करो मोहसिन के लिए दुआ कि तुम्हें यूं लगे कि तुमने हक अदा कर दिया है, फिर उसके लिए दुआ करो, अपने मोहसिनों का शुक्रिया। और यारो मेरे नबी पर कोई एहसान नहीं कर सकता, लेकिन मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसने थोड़ी सी भी मोहब्बत की ना, मदीने वाले लेने गए मेरे नबी पाक को हिजरत से पहले, तो हुजूर के चचा हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हालांकि अभी कलमा नहीं पढ़ते थे, वो कहने लगे ओ मदीने से लेने आने वालों, नबी पाक यहाँ बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, इनका बड़ा एजाज है, अगर तुम महबूब की हिफाजत कर सकते हो तो फिर लेके जाना। तो अहले मदीना ने कहा कि आप एक दफा भेजें तो सही, हम तो अपने अहले खाना से बढ़कर हिफाजत करेंगे। ये बातें हो रही हैं। एक अंसारी थे हजरत अबू हैसम, उठ के ना हुजूर के करीब गए, कहने लगे या रसूलल्लाह एक बात कर लूं? हुजूर ने फरमाया कर लो। अर्ज की हुजूर हमारे जिन जिन से भी ताल्लुकात है हम सब से बिगाड़ देंगे, हुजूर हम सिर्फ और सिर्फ आपकी गुलामी करेंगे, लेकिन एक हल्का सा डर है, अगर इजाजत हो तो अर्ज कर लूं? हुजूर ने फरमाया करो। अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह कल को अगर आपको गलबा मिले और अल्लाह के फजल से मिलेगा तो फिर ऐसा ना हो कि आप अपनी कौम की तरफ लौट आए तो फिर हमसे ये फिराक ये विछोड़ा सा नहीं जाएगा। हुजूर फिर आप वापस तो नहीं आएंगे? तो हुजूर ने उनकी बात सुनी तो हुजूर मुस्कुरा पड़े, फरमाया मदीने वालों सुनो, कभी ना भूलना मैं तुम में से हूं और तुम मुझ में से हो। छोड़ के क्यों? हमारे एक बुजुर्ग से किसी ने कहा था ओ तुम लोग मदीने ज्यादा रहते हो, हालांकि नबी पाक ने तो मक्के में ज्यादा वक्त गुजारा है। 63 साल उम्र मुबारक में से 53 साल मक्के में गुजारे, मदीना तैयबा में तो सिर्फ 10 साल गुजारे और तुम हर वक्त मदीना करते हो। वो कहने लगे जा जाके अपना कैलकुलेटर ठीक कर, तेरा ये फलसफा भी ठीक नहीं,
नबी पाक ने मक्के में 53 साल गुजारे हैं और मदीने में कयामत तक के लिए डेरा लगाया है। जा जाके कैलकुलेशन ठीक कर। हुजूर ने फरमाया रहना भी यहाँ है, दफन भी यहाँ होना है, कयामत में उठूंगा तो मेरी कब्र भी मदीने से खुलेगी। हजरत उमर फारूक कहते हैं मैं हजरत सिद्दीक अकबर के पास बैठा था तो एक खातून आ गई दरबार खिलाफत में किसी काम से। तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपने कंधों से चादर उतारी, उस चादर को जमीन पे बिछाया, उस बेटी को, उस खातून को अपनी चादर पे बिठाया। तो हजरत सैयदना उमर कहते हैं मैंने कहा अल्लाह ने आपको इतनी शानों से नवाजा है, अंबिया के बाद आप सबसे अफजल हैं और आप अपनी चादर किसके लिए बिछा रहे, कौन है आखिर ये खातून? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे हजरत साद बिन रबी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान उहद में हुजूर के कदमों में जान कुर्बान की थी। मैंने कहा हाँ। कहने लगे ये उसी साद बिन रबी की बेटी है, ये आज आई है। और हमारे मुल्क में क्या हुआ, कभी पलट के देखना शुहदा के खानदान किस कैफियत में, कभी पलट के देखना सरहदों पे जान देने वालों के बच्चों की कैफियत क्या है। कभी किसी तकरीब में बुला लिया जाता है, 2 जुमले कह दिए जाते हैं, कोई एक आध मेडल भी दे दिया जाता है, लेकिन कभी पलट के देखना उनकी कैफियत क्या है, उनका ख्याल रखा, उन चीजों को गौर किया गया। किसी ने अगर किसी मकाम पे कोई नेकी की तो उस नेकी का एजाज रखा गया। मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा है, बड़ा छोटा आदमी हूं कि मैंने देखा है दीन का काम आप थोड़ा करते हैं, रब आपको अजर इतना अता करता है, इतना अता करता है कि इंसान शर्मिंदगी में पानी पानी होता जाता है कि ये तो बिल्कुल मेरी औकात ही नहीं थी, ये तो कैफियत ही नहीं थी। ये इस मस्जिद के नक्शे की जब बात चल रही थी तो नक्शा मंजूर करने वालों में से एक साहब ने मुझे कहा इतनी बड़ी मस्जिद बना रहे हैं तो वहां तो आबादी कोई नहीं, तो इतनी बड़ी मस्जिद बना रहे हैं तो लोग कहां से आएंगे? तो मैंने कहा हमें तो पहले भी नहीं पता कहां से आते हैं। वो कहने लगे नहीं फिर भी कोई अंदाजा तो हो। मैंने कहा कि मैं चले मुसलमान पर वैसे ही एतबार करना चाहिए, तो मैं तो वैसे ही पगड़ी दाढ़ी वाला हूँ, सच बताता हूँ मुझे नहीं पता कहां से आएंगे, पर उम्मीद है कि आ जाएंगे। आप जो आ रहे हैं वो मुझे सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, तुम्हारी जगह थोड़ी है, जगह जरा बदल लो। मैंने कहा जरा ठहर जाओ, जो चीजें हो रही हैं इनको जरा मैनेज कर ले। देखो अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह का रसूल दीन किसी का कर्ज नहीं रखता। हमारे मुखलिस होने में देर होती है, हम जो और जल्दी शिकवा करते हैं अपनी जुबान पे, अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। बाज़ औक़ात ना चाहते हुए कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जिनमें बाद में शर्मिंदा होते हैं, यार ये जुमला क्यों कहा, दीन तो बड़ा एजाज देने वाला। हमारे यहाँ ना खुद गर्जी को बाकायदा रिवाज दिया गया और बड़े बड़े गलत जुमले जो अखलाकन अपनी जुबान से अदा भी नहीं किए जा सकते। मैं तो जी काम निकालने के लिए किसी को भी बाप बना लेता, माज़अल्लाह। मुसलमान तो इस तरह की बात नहीं कर सकता। ये खुद गर्जी, ये लालच, ये वक्ती तौर पर किसी शख्स को इस्तेमाल करना, टिश्यू पेपर बनाना, यह अहले ईमान का तो तरीका ही नहीं। वो तो याद रखते हैं हर एक का एहसान, वो तो किसी ने मोहब्बत की हो तो उसका ख्याल रखते हैं, अपने मोहसिनों का शुक्रिया अदा करें। आप यकीन करें मैंने जिंदगी में ऐसे असातिज़ा देखे जिनका मकसूद तनख्वाह लेना नहीं था, पढ़ाना था। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे चैनल उस्मान भाई AR के ऊपर पीर अजमल रज़ा कादरी साहब के बयानात मौजूद हैं। अगर आप मज़ीद बयानात सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।